Right. So we'll start. Hello everyone. A very good afternoon to everyone. Welcome to this live session on importance of financial planning for future readiness. We are joined by a very prominent speaker and expert with us here. I'd like to briefly give the you know uh, जितेंद्र सर का मैं देना चाहूंगा उनके बारे में बताना चाहूंगा सभी को सो जितेंद्र सोलंकी इज अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर with over 15 years of experience in the financial services industry. You can correct me, sir, wherever I go wrong. Sure, no problem. He has 15 years of long-term experience in financial services industry, and he specializes in holistic financial planning and global investment management. He's a certified financial planner and estate planner, and he founded Plan Special Needs to provide specialized services and awareness programs for families with special needs children. Jitendra sir is also the founder and director of Special Needs Estate Planners Private Limited, focused on wills, trust, succession planning, and related areas. As a respected writer also and a speaker, his book Financial Planning for Families, Having Children with Special Needs is widely praised for its comprehensive guidance on this critical subject. And with What After Us as the central theme of Nai Disha's pavilion at the International Purple Fest 2024, we are excited to host our respected expert for this session. Welcome, sir. Hello. सो आज के डिस्कशन में हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का यूज करेंगे एंड ताकि पेरेंट्स को ईज हो समझने में एंड विद दिस इंट्रोडक्शन आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुडेज सेशन. सो आज का सेशन इज ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर फ्यूचर रेडीनेस. अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स इस बात को टालते रहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है एंड जब जरूरत पड़ जाती है तो बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं. सो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे फ्यूचर के लिए रेडी रहने के लिए आपका बच्चा असिस्टेड लिविंग में जाएगा, इंडिपेंडेंट होगा. उस आपके बाद व्हाट आफ्टर मी जो क्वेश्चन रहता है सभी पेरेंट्स के दिमाग में, उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे कि आप पहले से कैसे शुरुआत कर सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के, किस तरह से अपने फाइनेंसेस को आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं, किस तरह से जनरेशन जनरेशन के लिए आप प्लान कर सकते हैं. So I guess the first main discussion point would be how to plan for two generations. I would like Jiten sir to throw some light on this topic. Yeah, thank you and good evening to all the parents who are listening to us. See, I always say it's a how to, it's a planning for two generations when you have a special needs child. Now, why I'm saying is two generations because one, the special needs child or an adult is a lifelong dependency as with respect to the financial affairs. So you have to plan for him. So you are planning for his complete lifetime. Unlike traditional planning where you plan for children's up to marriage and then they are on their own. Okay. Second, you have to plan for yourself also. That means your old age, your lifetime. And in most of the cases, the child lifetime would extend beyond the parents' lifetime. So that means comparison to traditional planning, when you are doing a special need planning, you are planning for two generations. So what comes in when you are planning for two generations? Which means that you have to provide, leaving aside the emotional and all other aspects, when it comes to financials, you have to provide for two generation financials. So you have to provide for yourself, you have to look at your own retirement, own your retirement years, your own expenses, and then you have to provide for the special need dependent for his complete lifetime. So, comparison to traditional planning, you have to provide financials for two generations. And that's what make things probably, I would say, difficult because you need a much more higher corpus than in a general planning or in a traditional planning we do. See, in a traditional planning, in my retirement, I need only my retirement corpus. When I have a special need dependent, I have to plan for two corpus. One corpus which will sustain my own retirement years, second corpus which will sustain for special need dependent. So planning for two generations, and when you have to plan for two generations, the requirement is higher. We all know we have limited resources. Okay.
uh, there is not going to big inheritance which is going to come suddenly and provide for the finances. And we all understand the importance of long term investments. The money has to grow. Whatever savings you are doing has to grow, then only you can provide for. Okay, if your money is not growing, you are not beating inflation, probably you are losing money. So when your money has to grow and when your requirements are higher, either you have to provide for more resources if you are starting late, or if you start early, you can do it same accumulation you can do with lesser resources. Okay, so the choice is with parents. Now the interaction we have with families, we have seen that if you delay this planning, probably the requirement is too high. And sometimes when you are reaching retirement, you are calculating the amount of money required, you are falling short of the resources. Okay. So that's why importance of financial planning comes in, that because you have to plan for two generations, because your requirements are much higher. So it's better to start early, plan early. Okay. So that the limited resources you have, you can optimize your resources very well and can reach your target goal. राइट सर, एक चीज बहुत प्रोमिनेंट हमारे साथ सामने आई थी कि जैसे एक कॉमन चीज होती है कि लोग लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, टर्म इंश्योरेंस करते हैं, जो भी इंश्योरेंस करते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जब वो अर्ली स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि रिसोर्सेस कम भी लगते हैं आपके। राइट, सो Right. उस हिसाब से भी हमें सोचना चाहिए कि हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं अर्ली तो हमारे रिसोर्सेज उतने ज्यादा लगेंगे नहीं जितना हमें लग रहा है। एंड हाँ, या दैट्स राइट। सी, मैं अगर 30 की एज पे स्टार्ट करता हूँ, ओके, तो मे बी मुझे 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा रिटायरमेंट कॉर्पस को एक्यूमुलेट करने के लिए। ओके, यही मैं अगर डिले करता हूँ और 40-45 की एज पे स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे रिक्वायरमेंट ये बढ़ के हो सकता है 50,000 पर मंथ भी चला जाए। कैन आई हैव दोज काइंड ऑफ रिसोर्सेज? जितना मैं अर्ली स्टार्ट करूंगा उतना मैं कंपाउंडिंग इम्पैक्ट दे सकता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट्स पे, उतना ही मैं एक्यूमुलेट कर सकता हूँ कम रिसोर्सेज के साथ। और प्रॉब्लम वही आएगा कि अगर आप डिले करते हो प्लानिंग को, तो फिर रिसोर्सेज आपके बहुत बढ़ जाएंगे जो चाहिए आपको सेम अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि मनी जो आपके स्पेशल नीड के लिए चाहिए और आपके रिटायरमेंट के लिए चाहिए, वो तो रिड्यूस नहीं हो सकता। आप अपनी लाइफस्टाइल को कितना रिड्यूस करोगे? ओके, से आई नीड अ कॉर्पस ऑफ 3 करोड़ एट माई रिटायरमेंट। अब मैं उसको घटा के 1 CR पे नहीं ला सकता, बिकॉज मेरा लाइफस्टाइल सडनली हिट हो जाएगा। तो उसका ऑप्शन क्या है मेरे पास? या तो मैं अर्ली स्टार्ट करूं और कम रिसोर्सेज के साथ इसको एक्यूमुलेट कर लूं। अगर मैं डिले करता हूं तो मेरे रिसोर्सेज जो है बहुत बढ़ जाते हैं। राइट सर, सो सर ऐसे मतलब मल्टीपल एलीज होंगे, मल्टीपल रास्ते होंगे जिससे पेरेंट्स अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं, अर्ली अपने रिसोर्सेज को चैनल कर सकते हैं मल्टीपल जगहों पे। तो आप अगर कुछ बता पाए पेरेंट्स के लिए कि वो यहाँ से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट ना सेकेंडरी आता है, पहले तो ये आता हम्म, है कि आप पहले फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट तो कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करें, राइट। अभी आप इंटरेक्शन करो पेरेंट्स को, किसी भी पेरेंट्स को शायद ये कैलकुलेशन नहीं करा होगा कि मुझे अपने बच्चे के लिए कितना चाहिए, कितना मनी हम्म, चाहिए। अब अगर मुझे ये नहीं पता है कि मुझे रिटायरमेंट पे कितना मनी चाहिए होगा अपने बच्चे के लिए, या आज अगर कुछ हो गया तो मुझे हम्म, कितना मनी सेट असाइड करना चाहिए, जब मुझे ये नहीं पता है, तो मैं रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमाइज करूंगा? ओके, करेक्ट, मैं जितना भी इन्वेस्ट करूंगा शायद वो कम पड़ेगा, बिकॉज मैंने कभी मैच नहीं किया कि मैं क्या इन्वेस्ट कर रहा हूँ और क्या एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। तो करेक्ट। सबसे जो पहला स्टेप है बिफोर इवन यू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, ओके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली पेरेंट्स ढूंढते रहते हैं, माइंड में एक ही चीज होता है कि स्पेशल चाइल्ड का केयर है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो उसकी हम्म, रिटायर नीड्स को मीट कर दे। बट मुझे लगता है कि खाली उसकी नीड्स नहीं, आपको दोनों की नीड्स मीट करनी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप जो करोगे, सेविंग्स तो उतनी है आपके पास। तो बहुत जरूरी है कि ये रिक्वायरमेंट पहले कैलकुलेट हो। राइट, आप आइडेंटिफाई तो करो कि क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। उसके लिए हम बोलते हैं कि जो भी लाइफ टाइम कॉस्ट है वो आप पहले एस्टिमेट करो। जब आप वो एस्टिमेट कर लोगे, तब आपको पता लगेगा कि आपको कितना सेविंग्स का रिक्वायरमेंट की जरूरत है। और जब मेरे पास ये एस्टिमेशन हो जाता है, तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चूज करना मेरे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि फिर मैं
एनालाइज कर सकता हूँ कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इस रिक्वायरमेंट में फिट बैठता है मेरे लिए। तो व्हाट आई कैन गैदर फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन इज बेसिकली स्टार्टिंग में हमें एनालाइज करना जरूरी है कि हमारे लाइफस्टाइल कैसी है, और ये जानना, ये समझना कि ये लाइफस्टाइल में ज्यादा परिवर्तन नहीं आने वाला है आगे चलकर भी, एंड उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेट करना फॉर आवर जनरेशन एंड एज वेल एज फॉर माय चाइल्ड जनरेशन की उसके लिए कितनी नीड होगी और हमारे रिटायरमेंट के लिए कितनी नीड होगी, एंड उसके अकॉर्डिंग वापस समझना कि कितना हमें एक्यूमुलेट करना है, राइट सर? या यस, देखिए, मैं फाइव जनरली हमारे जो डिस्कशन का पॉइंट भी है कि फाइव हम्म। बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके राइट। फाइनेंशियल प्लानिंग। अब स्पेशल नीड्स प्लानिंग पहले तो होती क्या है? एक हम्म फाइनेंशियल प्लानिंग है, आपने फाइनेंसेस को जो है एस्टिमेट कर लिया। दूसरा आपकी लीगल प्लानिंग है, जो हम्म आपने लीगल फ्रेमवर्क बनाया, चाहे वो ट्रस्ट बनाए चाहे वो लीगल गार्डियन पे छोड़े। अभी इन दोनों का इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये इंटीग्रेटेड नहीं है तो कोई ना कोई आपने जो है प्लानिंग अधूरा छोड़ दिया। या तो लीगल आपने प्लानिंग छोड़ दी या फाइनेंशियल प्लानिंग छोड़ दी। तो होगा क्या? मान लीजिए मैंने लीगल प्लानिंग कर दी, ट्रस्ट भी बना दिया, अब फाइनेंशियल प्लानिंग करी नहीं है, और मैंने फंड मुझे पता नहीं है कितना जाना है, तो ट्रस्ट क्या करेगा? ट्रस्ट कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएगा। शायद ट्रस्ट में आप जितना छोड़ोगे, अगर आपने एस्टिमेट नहीं किया है, ट्रस्ट में आप जितना मनी छोड़ोगे, वो शायद ट्रस्ट के लिए शॉर्ट पड़ जाएगा। देन ट्रस्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ट्रस्ट हो या लीगल गार्डियन हो, वो वही मैनेज करेगा जो आप छोड़ के जाओगे, जो आप एक्यूमुलेट करोगे। दे आर नॉट गोइंग टू फाइंड रिसोर्सेज फ्रॉम एनीवेयर एल्स। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैलकुलेशंस की जाए। अब फाइव बिल्डिंग ब्लॉक्स की हम बात करते हैं कि क्या ऐसे फाइव बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो जनरली मैं बोलता हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग या स्पेशल नीड्स प्लानिंग का बड़ा हिस्सा होता है। इसमें सबसे पहले आता है बजटिंग। ओके, किसी भी एस्टिमेशन के लिए जब हम अपना रिटायरमेंट एस्टिमेट करते हैं तो हम ये एस्टिमेट पहले करते हैं कि हमारे आज के खर्चे कितने हैं। ओके, उसके बेसिस पे फिर हम फ्यूचर के खर्चे निकालते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं। अब अगर मुझे अपने स्पेशल चाइल्ड का लाइफ टाइम कॉस्ट एस्टिमेट करना है, तो मुझे पहले उसके एक्सपेंसेस पता होने चाहिए, तभी मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ। तो हम ये बोलते हैं कि बजटिंग सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, और जब आप बजटिंग करते हैं तो आप दो बजट बना के चलो। एक फैमिली बजट जो आप जनरली बना के चलते हो, और दूसरा स्पेशल नीड चाइल्ड का बजट आप अलग से बनाओ। आपको पता तो रहे कि आप कितना खर्चा उस पर कर रहे हो, क्योंकि ये भी एस्टिमेट करना है कि पेरेंट्स के बाद एक्चुअली में मंथली कितना खर्चा होगा, क्योंकि वही तो प्रोवाइड करना है आपको। होता क्या है कि बच्चा पेरेंट के साथ रह रहा है तो वो मिक्स जो खर्चे होते हैं उसी में जो है एस्टिमेशन हो जाता है, लेकिन स्पेशल चाइल्ड का अलग से एस्टिमेशन नहीं हो पाता। तो इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट आपका बजटिंग से होना चाहिए, कि बजट अलग से बना के चलें। और वो बजट का, इवन माय बुक आल्सो हैज, एंड माय वेबसाइट विल आल्सो हैव दैट, कि वो स्पेशल नीड चाइल्ड का एक बजटिंग कैसे होता है, कैसे करना चाहिए आपको। दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। अब जब ये बजट आपने बना लिया, ये आपका बेसिस बनता है उस कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए जो आप एक्यूमुलेट करना चाहते हो अपने स्पेशल चाइल्ड के लिए। तो मैं हम जनरली क्या करते हैं प्लानिंग में, कि हमने आज के एक्सपेंसेस लिए, उसको हम लाइफ टाइम एक्सपेंसेस निकालते हैं, और वहां से हमको पता लगता है कि क्या लाइफ टाइम कॉस्ट होने वाली है। अब अगर मैंने बजटिंग अलग से नहीं कर रखी है तो मैं एस्टिमेट नहीं कर पाऊंगा कि कितना कॉस्ट निकलेगा, राइट? तो बजटिंग स्टार्टिंग पॉइंट है। बजटिंग के पास बाद सेकंड बिल्डिंग ब्लॉक आता है लाइफ टाइम कॉस्ट एस्टिमेशन। इसके बिना आपकी प्लानिंग अधूरी है। दैट्स माय स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। अगर आपने लाइफ टाइम कॉस्ट एस्टिमेट नहीं किया है, तो आप ट्रस्ट बना लो, आप लीगल गार्डियन बना लो, आप कोई भी प्रोविजन कर लो, वो फाइनेंस से शॉर्ट पड़ने वाले हैं, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज उतना ही है। उसी रिसोर्सेज में आप अपने रिटायरमेंट का खर्चा भी निकालोगे। कहने को हम बोल सकते हैं कि शायद मैं 75 तक जीऊंगा। मैं हमेशा क्वेश्चन रेज करता हूँ कि 90 तक जी गए तो क्या? ओके, 75 तक आप सोचते हो, मैं बोलता हूँ कि 90 तक जी गए तो क्या? तो वो 25 साल भी तो आपको एक्सपेंसेस निकालने हैं ना। कॉर्पस करेक्ट एक ही करेक्ट। आपने एस्टिमेट किया, हम्म उसी कॉर्पस को अब आप 90 साल तक अगर खर्चों में निकाल दोगे, तो फिर स्पेशल चाइल्ड के लिए कितना बचेगा? तो करेक्ट। लाइफ टाइम कॉस्ट एस्टिमेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लाइफ टाइम कॉस्ट एस्टिमेशन सेकंड बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके बेसिस पे आपकी प्लानिंग होती है। फर्स्ट इज बजटिंग, सेकंड इज लाइफ टाइम कॉस्ट एस्टिमेशन, थर्ड राइट। आता है गोल सेटिंग। ओके, गोल सेटिंग। हम
कोई भी जब रिक्वायरमेंट निकालते हैं तो गोल सेट करते हैं, मुझे घर खरीदना है, मुझे कार खरीदनी है, या बच्चों की एजुकेशन है, मेरा खुद का रिटायरमेंट है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? फॉर फैमिलीज इट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि स्पेशल चाइल्ड की गोल सेटिंग कैसे करें। उसका तो रिक्वायरमेंट लाइफ लॉन्ग है। तो जब हम घर खरीदते हैं तो पता होता है कि 10 साल के बाद घर खरीदना है, ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी। पर स्पेशल चाइल्ड का रिक्वायरमेंट लाइफ लॉन्ग है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे आप अपनी गोल एस्टिमेशन करते हैं कि ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, ये मीडियम टर्म है, बेसिस ऑन कि कौन सा गोल कितने साल के बाद आने वाला है, ऐसे ही स्पेशल चाइल्ड के एक्सपेंसेस को आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड कर दो। शॉर्ट टर्म वो कि जो 3 साल के अंदर होने वाले हैं, लॉन्ग टर्म वो जो 10 साल के बाद होंगे। तो इस तरीके से गोल सेटिंग होगा। जब गोल सेटिंग हो गया तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट भी करना आसान होगा, क्योंकि ये 3 साल के एक्सपेंसेस मीट करने हैं तो मैं एफडी में रखूंगा। पर ये खर्चे मेरे 10 साल के बाद आने वाले हैं, तो मैं इसको जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लेके जाऊंगा, मुझे इन्फ्लेशन बीट करना है। तो गोल सेटिंग से वो आसान हो जाता है। चौथा जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो होता है सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट हम बोलते हैं कि हम ऐसे प्रोविजन जिससे हम फाइनेंशियली जो है मेरे बाद जो है चाइल्ड स्टेबल रहे। 3 सेफ्टी नेट प्राइमरी इंपॉर्टेंस है। ओके, लाइफ, हेल्थ एंड डिसेबिलिटी। लाइफ, अगर कुछ हो गया देन वो गोल कैसे मीट होगा। हेल्थ, अगर कुछ हेल्थ इमरजेंसी आती है तो मेरे पास क्या प्रोविजन है। तीसरा डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी हम पेरेंट्स की बात करते हैं कि अगर डिसेबिलिटी हो गई किसी तरह की और इनकम स्टॉप हो गई, देन व्हाट इज द ऑप्शन, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस वहां पे किक इन नहीं होगा। तो ये 3 सेफ्टी नेट सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है प्योर लाइफ इंश्योरेंस। आई डू नॉट रिकमेंड एनी अदर लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि कोई और भी लाइफ इंश्योरेंस आपकी मीट नहीं कर सकता। और लाइफ इंश्योरेंस एक अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके रिसोर्सेज में जो भी गैप है उसको मीट कर सकता है। 3 करोड़ का कॉर्पस रिक्वायर्ड है, आप 1 ही करोड़ है आपके पास। वो 2 करोड़ का जो अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो अगर कुछ भी हो गया तो वो लाइफ इंश्योरेंस आपको वो गैप को फुलफिल करेगा। इससे बढ़िया टूल नहीं है आपको मीट आउट करने का कोई भी गैप होगा। तो लाइफ इंश्योरेंस मतलब प्योर टर्म इंश्योरेंस। हालांकि कैश वैल्यू पॉलिसीज होती हैं, लगता है बहुत अच्छी है, बट आई स्ट्रिक्टली अगेंस्ट देम फॉर स्पेशल फैमिलीज। और आज की डेट में 100 साल तक टर्म इंश्योरेंस मिलने लगा है। तो पेरेंट्स जो है सिक्योर हो सकते हैं कि 100 साल तक कभी भी डेथ होगी तो ये स्पेशल चाइल्ड की गोल को मीट करेगा। लाइफ इंश्योरेंस। सेकेंड इज हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस खुद का, ताकि जो है मेरी सेविंग से मुझे पैसा ना निकालना पड़े। ओके, क्योंकि वो सेविंग्स अब मिडिल क्लास फैमिली लिमिटेड सेविंग्स है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है जो हम आज देखते हैं, अगर वो आ गई सर पे तो वाइप आउट हो जाएगी सेविंग्स। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। अब पेरेंट्स के लिए तो है ही है, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए पहले नहीं था हेल्थ इंश्योरेंस, परमानेंटली एक्सक्लूडेड थे, बट दो 2020 में चीजें चेंज हो गई। मेंटल हेल्थ एक्ट में चेंज हुआ। आईआरडीए ने नया मैंडेट निकाला जिसमें ये मैंडेटरी कर दिया कंपनीज को कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को आपको कवर करना है। आज की डेट में कंपनीज ने ऑलरेडी प्रोडक्ट अनाउंस कर दिए हैं। आप देखो, न्यू इंडिया, नेशनल, यूनाइटेड इंडिया, इवन स्टार, दे हैव कम आउट विद अ सेपरेट प्रोडक्ट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ओके, तो और बाकी इंश्योरेंस कंपनीज भी अगर सेपरेट प्रोडक्ट नहीं है तो बेसिक हेल्थ प्लान में ही कवर दे रखे हैं। ओके, मैंडेट ये है कि कंपनीज केवल डिसेबिलिटी के बेस पे रिजेक्ट नहीं कर सकती हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर आप अप्लाई करते हैं और कंपनी ये नहीं बोल सकती कि इसको डिसेबिलिटी हम कवर नहीं करेंगे, वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा स्टार्ट हुआ है कि हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबिलिटी हो गई है स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए भी। तीसरा आता है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मतलब आपको खुद सोचना होगा कि अगर कुछ हो गया और इनकम स्टॉप हो गई, कोई डिसेबिलिटी पेरेंट्स को हो गई, तो फिर उसका क्या ऑप्शन है। तो हम जनरली कवर करते हैं कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में डिसेबिलिटी कवरेज होता है, तो उस तरह के हम प्रोविजन करते हैं। ये वो सेफ्टी नेट है जो सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद मुझे लगता है कि कहीं भी आपको दिखता है कि ये इसके लिए मेरे पास प्रोविजन अवेलेबल है कि मुझे अपनी सेविंग्स ना निकालनी पड़े, होम इंश्योरेंस है या और तरह के, तो वो होना चाहिए, वो सेफ्टी नेट क्रिएट होनी चाहिए। फर्स्ट, बजटिंग। सेकंड, एस्टिमेटिंग लाइफ टाइम कॉस्ट। थर्ड इज गोल सेटिंग। फोर्थ इज सेफ्टी नेट। लास्ट इज योर रिटायरमेंट प्लानिंग। ओके,
रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिटायरमेंट ईयर्स में आप उस स्टेज पे जा रहे हो जहां आप इनकम स्टॉप हो जाएगी शायद आपकी। ओके, आप वो पीरियड सोच रहे हो, तो वो कॉर्पस कितना चाहिए आपको। आपको अपने भी एक्सपेंसेस मीट करने हैं और साथ में स्पेशल चाइल्ड के भी एक्सपेंसेस मीट करने हैं, दोनों। तो दोनों के कॉर्पस का एस्टिमेशन होना चाहिए। जब तक आप वो एस्टिमेट नहीं करोगे तब तक आप सेविंग्स को आप राइट चैनल नहीं कर सकते, और आपको पता ही नहीं लगेगा कि जो भी आप सेविंग कर रहे हो क्या उससे वो गोल मीट होगा भी। ओके, तो ये वो 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को इन प्लानिंग पॉइंट्स पे काम करना चाहिए, तभी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग फैमिली की हो सकती है। इसके बाद एस्टेट प्लानिंग जरूर आता है, तो एस्टेट प्लानिंग पे भी हम बात करेंगे, बट जहां तक फाइनेंशियल प्लानिंग की बात है, ये 5 एलिमेंट्स हैं, या मैं हमेशा इनको बोलता हूँ कि ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स एक्चुअली सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि गोल्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो जैसे हम अपने गोल्स देखते हैं कि अब फॉर एग्जांपल मेरी उम्र अगर 30 साल है और मैं अगले 40 साल में मेरी जो हेल्थ की कंडीशन है वो सिमिलर नहीं रहेगी। तो उस चीज हैं। को अंडरस्टैंड करते हुए अगर मैं खुद के लिए जिस तरह से प्लानिंग करने की सोच रहा हूँ उस तरह से मुझे अपने स्पेशल चाइल्ड के लिए भी सोचना जरूरी है, राइट? सो राइट। हमारी नीड्स इवॉल्व होती रहती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमें एस्टिमेट लगाना चाहिए। सो उस पे अगर आप थोड़ा और लाइट डाल सकें कि कैसे किया जा सकता है ये एस्टिमेट। देखिए, स्पेशल चाइल्ड से रिलेटेड आपको पता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आती है। ओके, राइट। एक तरीका ये है जो हम मेरी मैंने बुक में भी डिस्क्राइब करा हुआ है, कि एक टाइमलाइन आप बना लो स्पेशल हम्म। चाइल्ड की लाइफ स्टेजेस का। राइट। पहली स्टेज है माइनॉरिटी में है, दूसरी स्टेज है एडल्ट है, पेरेंट के साथ रहता है, तीसरा हम्म। स्टेज है एडल्ट है, वो मूव आउट हो जाता है रेजिडेंशियल लिविंग में। फोर्थ हम्म। स्टेज है फर्स्ट पेरेंट की डेथ हो गई। फिफ्थ स्टेज है सेकंड पेरेंट की डेथ हो गई। ये राइट। टाइमलाइन आप बनाओ। ओके, टाइमलाइन बनने से आपको ये पता लगता है कि हर लाइफ स्टेज में क्या क्या रिक्वायरमेंट आने वाली है। ओके, तो प्लानिंग करना आसान हो जाता है। ये टाइमलाइन, और ये टाइमलाइन बनाना आसान है क्योंकि आपको पता है कि ये अगर लाइफ स्टेज है तो इस पे क्या रिक्वायरमेंट आने वाली है, तो पेरेंट्स को ये पता होगा कि हम किस लाइफ स्टेज पे बैठे हैं और आगे अब क्या बचता है प्लानिंग के लिए। ओके, तो ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड, जो गोल सेटिंग की आपने बात की, राइट, तो गोल सेटिंग जैसे मैंने बताया कि गोल सेटिंग में स्पेशल चाइल्ड जब है तो ट्रेडिशनल की तरह ही हम कर सकते हैं। स्पेशल चाइल्ड के केस में मेन क्या है, उसके एक्सपेंसेस, उसके अलावा उससे जुड़ा हुआ कुछ भी होगा, चाहे वो हेल्थ इमरजेंसीज हो या कुछ और। राइट। हम्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि स्पेशल चाइल्ड जो है आपका सेम घर में रहेगा लेकिन आपको घर का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हम्म। ये गोल कितनी दूर होगा, इसको आप एस्टिमेट कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, एक्सपेंसेस को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मेरा नेक्स्ट 3 इयर्स के एक्सपेंसेस हो गए। मीडियम टर्म जो मेरा 3 साल से लेकर 7 साल के एक्सपेंसेस होंगे वो मेरा मीडियम टर्म गोल हो गया। और जो 7 से 10 साल के बाद आएंगे वो मेरा लॉन्ग टर्म गोल हो गया। तो मेरा गोल डिफाइन हो गया, उस एक्सपेंसेस का मैंने एस्टिमेट कर लिया कि ये टोटल एक्सपेंसेस इतने होने वाले हैं तो इतना अमाउंट ऑफ मनी मुझे चाहिए होगा। तो वो हम्म। मैंने एस्टिमेशन कर लिया। अब जब ये गोल एस्टिमेशन हो गया तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज उसके अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। इसके बीच में कुछ भी रिक्वायरमेंट है जो पेरेंट्स को पता होता है, जैसे मैंने कहा हाउस मॉडिफिकेशन है या कुछ इक्विपमेंट चाहिए होंगे, वो आप जिस पीरियड में रिक्वायर्ड होगा उस पीरियड में आप ऐड कर दीजिए, आपके वो गोल अमाउंट में ऐड हो जाता है। हम्म। हम्म। तो गोल सेटिंग इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा आसान है। और फिर जैसे मैंने कहा ना, अब ये गोल सेटिंग आपने इस तरीके से कर दी, अब हम्म। इन्वेस्टमेंट भी आप इसी तरीके से करें। ओके, राइट। इन्वेस्टमेंट हम कैसे करते हैं कि हम जनरल केसेस में हमने लॉन्ग टर्म गोल है 10 साल के बाद चाहिए, एसआईपी हमने शुरू कर दी। ओके, हम्म। इन्वेस्टमेंट भी आप बकेट्स बना लीजिए। आपने 5 बकेट बना लिए, 4 बकेट बना लिए। पहला बकेट मेरा इमरजेंसी फंड के लिए है, कुछ भी चाइल्ड से रिलेटेड इमरजेंसी आ गई, ये अमाउंट ऑफ मनी वहां यूटिलाइज होगा। हम्म। सेकंड बकेट मेरा वो 3 साल के एक्सपेंसेस मीट करेगा। थर्ड बकेट मेरा 3 से 7 साल के एक्सपेंसेस मीट करेगा। और जो हम्म। चौथा बकेट है वो मेरा लॉन्ग टर्म है, वो 10 साल के बाद मेरा यूटिलाइज होगा। तो जब मैंने बकेट, और अब बकेट बन गए, हर बकेट का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अलग अलग हो गया। राइट। शॉर्ट टर्म के लिए एफडी में डाल दिया, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा इक्विटी, थोड़ा डेट, थोड़ा गोल्ड में डाल दिया।
तो फिर मेरे लिए इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा आसान है। ऑल्सो सर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था इंश्योरेंस के बारे में, जब हम बात कर रहे थे कि आईआरडीआई ने रिसेंटली ये एक्ट डाल दिया है कि एवरी कंपनी शुड हैव अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। अक्सर पेरेंट्स के साइड से ये चैलेंज देखने को आता है कि स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट ऑटिज्म एंड अदर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, बहुत चैलेंजेस आते हैं फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज। वो देखते भी नहीं है, वो पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं जो भी पॉलिसी होती है उसको। तो इसके ग्रीवेंस के क्या तरीके होते हैं, अगर आप बता सकें। देखो, सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि अगर कंपनी रिजेक्ट करते होता क्या है, नहीं होता क्या है, मैक्सिमम टाइम पे एजेंट वर्बली मना कर देता है। हैं। राइट। कंपनी रिजेक्ट नहीं करती है, कंपनी से वो बात करता है, अंडर राइटर मना कर देता है और एजेंट बोल देते हैं नो। सबसे राइट। पहला पॉइंट ये है कि अगर कंपनी मना कर रही है, कंपनी से आप राइटिंग में लो। लेट द कंपनी गिव इन हम्म। राइटिंग कि नो, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू पॉलिसी बिकॉज ही हैज ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम और एनी अदर डिसेबिलिटी। राइट। मेरा ये मानना है कि इस मैंडेट के बाद कंपनी केवल डिसेबिलिटी के बेस पे रिजेक्ट नहीं कर सकती। ओके। राइट। या फिर आप अप्लाई करो एंड लेट द कंपनी रिजेक्ट द प्रपोजल बेस्ड ऑन द डिसेबिलिटी। हम्म। हाँ, अब कहाँ रिजेक्शन हो सकता है, मे बी शायद सिवियर डिसेबिलिटी के केस में आपको हेल्थ इंश्योरेंस ना मिले। ओके, कंपनीज के पैरामीटर्स में सिवियर डिसेबिलिटी हायर रिस्क फैक्टर्स में आ गया तो वहाँ हेल्थ इंश्योरेंस ना मिले। बट आई थिंक इन जनरल, जो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है आज की डेट में, पेरेंट्स आर एबल टू गेट हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, आप एनालाइज राइट। कर सकते हैं उसको। और ना, बेसिक हेल्थ प्लान में जहां आपका फैमिली फ्लोटर चल रहा है, वहीं पे आप कंपनी पे अप्लाई कीजिए अपने चाइल्ड के लिए। I राइट। don't think company can said no. They will, maybe they can put some conditions when they are giving you health insurance. But as of now, जो situation है उसमें health insurance is available from insurance companies for special children. राइट। I guess it was helpful for all the parents to listen to this and understand कि क्या रास्ते हो सकते हैं, किन रास्तों से वो जा सकते हैं इंश्योरेंस के लिए। एंड ऑल्सो जो सर ने 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए, उससे भी बहुत पेरेंट्स को हेल्प हुआ होगा क्लियर आउट करने में अपने माइंड में कि छोटे छोटे गोल्स बनाएंगे तो उसको रीच करना भी आसान होगा। बिकॉज अक्सर क्या होता है कि हम बड़ा गोल देखते हैं and वरिसम हो जाता है पेरेंट्स के लिए, एंड हमारे लिए भी वरिसम हो जाता है जब हम एक बड़े गोल की तरफ देखते हैं। तो इट्स बेटर कि आपने जैसे 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स बताए छोटे छोटे करके, उसको एक एक स्टेप में ले ले करके अगर आगे बढ़ते रहें तो इट बिकम्स इजी फॉर प्लानिंग। देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है ना, पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो रहा है, कहाँ पे ये डिले होता है कि करने के लिए बहुत कुछ है। ओके, राइट। जब सब चीज एक साथ दिखती है कि भाई प्लानिंग भी करना है, इन्वेस्टमेंट भी करना है, विल भी बनानी है, ट्रस्ट भी बनाना है, हम्म। लीगल गार्डियनशिप भी करनी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना स्कोप ऑफ वर्क है। ओके, राइट। कितना अमाउंट ऑफ वर्क इन्वॉल्व है। वहीं पे सारा कंफ्यूजन होता है बिकॉज इंफॉर्मेशन फ्लोज नहीं है इन चीजों का, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी नहीं है। तो कुछ पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ पेरेंट्स सडनली टास्क देख के घबरा जाते हैं कि इतना सब कुछ करना है। मेरा ये हम्म। मानना है कि स्टेप बाय स्टेप चलो आप। ओके, बिल्कुल। स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग और विल, ये दोनों को आप लेके चलो। ओके, हम्म। ये कंप्लीट करो। और टास्क आपने किए होंगे, मे बी लीगल गार्डियनशिप लेना है या और चीजें हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग और विल के साथ आप चलो, फाइनेंशियल प्लानिंग करो आप। फाइनेंशियल प्लानिंग से आई थिंक इफ यू कैन डू फाइनेंशियल प्लानिंग, लॉट ऑफ थिंग्स गेट्स क्लियर्ड आउट। क्या एरियाज हम्म। पे प्लानिंग करनी है, कहाँ पे गैप आ रहा है, क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना चाहिए अपने फाइनेंसिस को लेके। फाइनेंशियल प्लानिंग इस चीज को क्लियर करता है। और फाइनेंशियल प्लानिंग कोई प्रोडक्ट नहीं है कि मैं गया और मैंने प्रोडक्ट बेचा, इंश्योरेंस की तरह हो गया। करेक्ट। ये फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है। एक बार आपने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया एंड यू गेट यूज टू इट, आई थिंक यू विल रिपीट इट ईयर ऑन ईयर। हम्म। आपकी आदत बन जाएगी कि आप अपने फाइनेंसिस को मैनेज करके चलेंगे। और जब ये होता है तो कुछ भी चेंजेस आने वाले हैं। स्पेशल चाइल्ड के साथ बहुत सारे चेंजेस आएंगे, माइनॉरिटी में राइट। है, एडल्ट पे जाएगा, खर्चे ऐड होंगे, खर्चे कम होंगे, उसके बिहेवियर चेंज होता है, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उनको हम्म। अकोमोडेट करना फाइनेंसिस में इजी हो जाता है अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग अप्रोच लेके चलेंगे। वरना वो राइट। सब एड ऑफ हो रहा है। ओके, चेंजेस हुआ, सडनली एक्सपेंसेस चेंज हो गए, आपने देखा कि शूट अप कर गया। बट विच आई थिंक इन माय ओपिनियन, अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग अप्रोच लिया है, हर चीज को अकोमोडेट करना आसान है। राइट।
So, sir, I guess we can move ahead to the next discussion topic, which is estate planning. Uh, you can talk about that a little bit for the parents watching. यस, सो एस्टेट प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन एस्टेट Right. प्लानिंग इज वेरी क्रिटिकल. Why I'm saying is very critical because estate planning we are talking about one within our lifetime. क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जहाँ पे मैनेजमेंट केयर हम लोग ना कर पाए. Hmm. सेकंड, हमारे बाद जो है चीजें कैसे मैनेज होंगी. रेजिडेंशियल, Hmm. आइडेंटिफाइंग अ रेजिडेंशियल इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एस्टेट प्लानिंग. Right. बट रेजिडेंशियल में चाइल्ड रहेगा, फाइनेंसिस कौन मैनेज करेगा, डिसीजन कौन लेगा. ओके. एंड Hmm. इवन रेजिडेंशियल ऑप्शन भी जब आप चूज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग आपने आज चूज कर दिया तो लाइफ लॉन्ग ही वही ऑप्शन रहेगा. कल को हो सकता है वो ऑप्शन चेंज करना पड़े. राइट. तो ऐसी सिचुएशन में कौन डिसीजन लेगा. अब लीगल लॉज जो है, लीगलिटीज कुछ और बोलती है, और मैंने ये देखा है जो पेरेंट्स सोच के चल रहे हैं वो कुछ और है. ओके. वहां सबसे बड़ा डिफरेंस आता है, और कोई फैमिली नहीं चाहेगी कि हम ऐसी लीगलिटीज में फंसे कि जहाँ पे चाइल्ड का केयर इम्पैक्ट हो. तो Hmm. एस्टेट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और तीन चार चीजें जो है इसमें डिफाइन करनी होती है. ओके. फर्स्ट, पेरेंट्स को खुद को लीगल गार्डियनशिप लेना पड़ता है जब चाइल्ड 18 का हो जाता है. Right. राइट. Right. ये काफी पेरेंट्स इस चीज से भी अनअवेयर होते हैं. ओके. हाँ. एंड वी हैव टू मेक देम अवेयर. जो लॉज है वो लॉ ये बोलता है कि पेरेंट्स नेचुरल गार्डियन है जब तक चाइल्ड माइनर है. द मोमेंट चाइल्ड टर्न्स इनटू एन एडल्ट, Hmm. पेरेंट्स आर नो मोर अ नेचुरल गार्डियन. नाउ दे कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन द चाइल्ड बिहाफ. Hmm. तो अगर पेरेंट्स गए बैंक अकाउंट ओपन करना है अंडर अंडर गार्डियनशिप, वो नहीं हो पाएगा. या पेरेंट्स को कहीं पेपर साइन करने हैं ऑन चाइल्ड बिहाफ, वो नहीं हो पाएगा. Unless and until you show some legal document, you are authorized legally to take the decision. और Hmm. वो होता है लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट के. तो Right. once the child turns 18, it's important that parents seek a legal guardianship certificate. अब लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट नेशनल ट्रस्ट के थ्रू होता है, बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो कि नेशनल ट्रस्ट एक ऑप्शन है. ऐसा नहीं है कि आपको नेशनल ट्रस्ट मैंडेटरी है. नेशनल ट्रस्ट के बियॉन्ड अगर आप जाना चाहते हैं, और कोर्ट के सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, कोर्ट में के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट ऑल्सो. नेशनल Okay. ट्रस्ट एक प्रोविजन हो गया जो कॉस्ट इफेक्टिव है पेरेंट्स के लिए. Hmm. कॉस्ट नहीं लग रहा है पेरेंट्स का. राइट. इरिस्पेक्टिव का जहाँ कोर्ट में जब जाएंगे तो वो कॉस्ट आ जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है. तो नेशनल ट्रस्ट वो प्रोसीजर हो गया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लीगल गार्डियनशिप को समझे. अब लीगल Hmm. गार्डियन का मतलब क्या होता है. आई थिंक काफी केसेस में लीगल गार्डियन का रोल क्लियर नहीं है कि लीगल गार्डियन करता क्या है. पेरेंट्स Okay. को पता है Hmm. क्योंकि पेरेंट्स शुरू से मैनेज कर रहे हैं, तो पेरेंट्स वही मैनेज करते रहेंगे. Right. लेकिन जो नेक्स्ट लीगल गार्डियन बनेगा वो क्या करेगा. Hmm. देखिए, लीगल गार्डियन एक बार अपॉइंट हो गया, ही इज देयर टू टेक बोथ पर्सनल एंड फाइनेंशियल डिसीजंस. जो भी एसेट्स कुछ स्पेशल नीड्स के नाम पे हैं, उनका जो डिसीजन मेकिंग होगा वो लीगल गार्डियन करे. चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो बैंक अकाउंट्स हो, चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट हो उसके नाम. Hmm. ओके. तो अ लीगल गार्डियन इज होल सोल मैनेजिंग ऑल द अफेयर्स रिलेटेड टू स्पेशल नीड चाइल्ड, मच लाइक पेरेंट्स आर बी मैनेजिंग. ओके. Correct. Hmm. तो दैट्स द रोल ऑफ द लीगल गार्डियन. तो वो सारे डिसीजन लीगल गार्डियन लेगा. कहीं पे परमिशन लेने की जरूरत पड़ जाती है, लीगलिटी जिस तरह से बोलते हैं, मे बी प्रॉपर्टी अगर सेल करना है तो आपको शायद लेना पड़े परमिशन, बिकॉज Hmm. वो प्रॉपर्टी है स्पेशल चाइल्ड के नाम पे, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आप ऐसा करना चाहते हैं. ओके. तो वो Hmm. हो सकता है, बट दैट्स द रोल ऑफ लीगल गार्डियन प्ले. लीगल गार्डियन सेकंड आता है, आपके बाद कौन लीगल गार्डियन होगा ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि Hmm. मैटर लीगल वे में आप नहीं जाना चाहेंगे अगर आप लीगल गार्डियन छोड़ देते हैं. अगर पेरेंट्स Right. अपॉइंट नहीं करेंगे तो देन चाइल्ड इज लेफ्ट विदाउट अ लीगल गार्डियन. तो कौन लीगल गार्डियन बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा. अगर पेरेंट डिसाइड नहीं करते हो तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि Hmm. कौन लीगल गार्डियन बनेगा. वो मैटर्स फिर अपने आप में लेंदी हो जाता है. तो कॉम्प्लिकेट हो उसको जाता है. अवॉइड करने के लिए बेटर है कि पेरेंट Hmm. डिसाइड करे कौन नेक्स्ट लीगल गार्डियन बनेगा. Right. अब वहां पे जरूर लीगलिटीज इन्वॉल्व हो जाती है कि लीगल गार्डियन हो कौन सकता है. तो पहला राइट सिबलिंग का आता है. पेरेंट्स सिबलिंग के बियॉन्ड अपॉइंट कर सकते हैं. तो वो प्रोविजन है. और लीगल गार्डियन जो बन गया एक बार,
तो वो जाके नेशनल ट्रस्ट या उस कोर्ट के थ्रू अपना लीगल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट ले सकता है। पेरेंट्स अपॉइंट करते हैं विल के अंदर कि कौन नेक्स्ट लीगल गार्डियन बनेगा, उनके बाद कौन बनेगा। ओके, तो लीगल गार्डियनशिप इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन अगर आप ट्रस्ट भी बना रहे हैं तो ट्रस्ट का रोल सिर्फ फाइनेंशियल से रिलेटेड है। देखिए, राइट। ट्रस्ट फाइनेंशियल देखेगा, ट्रस्ट साइन नहीं कर सकता लीगल चाइल्ड के बिहाफ पे कहीं भी पेपर, वो करेक्ट। लीगल गार्डियन ही करेगा। तो इसलिए लीगल गार्डियन अपॉइंट करना इंपॉर्टेंट है। तो लीगल गार्डियनशिप हो गया। सेकंड, इनकेपेसिटेशन पेरेंट्स का। आपको ये भी सोचना होगा कि पेरेंट्स भी तो ओल्ड एज पे पहुंचेंगे। आप लीगल गार्डियन बन गए, आप ओल्ड एज पे पहुंच गए, आपका केयर कौन देखेगा। करेक्ट। ओके, अगर न्यूक्लियर फैमिली है, देखिए बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, आप चाइल्ड है और केवल पेरेंट्स हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि पेरेंट्स की ओल्ड एज पे कौन देखेगा चीजों को, वो फाइनेंशियल कौन देखेगा। ओके, वो क्वेश्चन भी आंसर करना जरूरी है, और उसके लिए लीगैलिटीज में जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो करने जरूरी है। तो लीगल गार्डियनशिप आ गया। सेकंड आता है विल। मेरे बाद ये मनी कैसे यूटिलाइज होगा अकॉर्डिंगली, वो सिर्फ आप विल में ही लिख सकते विल हैं। में ही लिख सकते हैं, राइट। अगर विल आपने छोड़ दी, विल नहीं है, तो वो पैसा जो है सिंपल सक्सेशन लॉ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो सक्सेशन लॉ बोलता है वो शायद आपकी विश नहीं है। करेक्ट। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप विल को लिखो और ये क्लियर करो कि ये पैसा स्पेशल चाइल्ड के लिए है, उसी के केयर के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। ओके, विल आ जाता है। इसके बाद फिर प्राइवेट ट्रस्ट प्रोविजन है। तो जो फैमिली चाहती हैं कि उनके फाइनेंशियल अफेयर्स को सेपरेट आउट किया जाए, और क्योंकि हमारे पास लीगल गार्डियन शायद फैमिली मेंबर नहीं होगा, कोई और होगा, तो हम नहीं चाहते कि उसके ऊपर सारा बर्डन दिया जाए, बिकॉज यू डू नॉट नो, अगर सारा बर्डन आ गया तो वेदर ही कंटिन्यू और नॉट, वो सब क्वेश्चंस हैं। तो आप सेपरेट आउट कर देते हो पर्सनल और फाइनेंशियल अफेयर। फाइनेंशियल अफेयर के लिए आपने प्राइवेट ट्रस्ट क्रिएट कर दिया। तो प्राइवेट ट्रस्ट बिकम द डिसीजन बॉडी ऑफ चाइल्ड का केयर, जहां भी फंडिंग हो रहा है, इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम द प्राइवेट ट्रस्ट। ओके, राइट। ये लीगैलिटीज हो गई। एक और डॉक्यूमेंट है जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है वो, दैट इज कॉल्ड अ लेटर ऑफ इंटेंट। ओके, LOI, या। सिंपल सिंपल सी बात है कि हम स्पेशल चाइल्ड है, नेबर है, हम 2 घंटे के लिए कहीं बाहर गए, हमने नेबर को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि प्लीज इस तरह से केयर करना और ये चीजें नहीं करना है। इसको आप एक्सटेंड करो, शायद 48 आवर्स के लिए भी आप एक्सटेंड कर दोगे, वर्बल इंस्ट्रक्शन दे दोगे। बट जब आप लीगल गार्डियन अपॉइंट करते हो आपकी लाइफ टाइम के बाद, कैन यू गिव इंस्ट्रक्शन वर्बली? नहीं। कुछ ऐसा आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा जो ये बता सके कि आपके स्पेशल चाइल्ड की लाइफ में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या करना चाहिए उनको, कहाँ पे कौन प्रोफेशनल अवेलेबल है, और वो करेक्ट। बनता है लेटर ऑफ इंटेंट। ओके, वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक फैमिली समटाइम्स कम टू मी और बोलती है कि कहाँ से स्टार्ट करें। आई ऑलवेज से देम, टेक दिस टेम्पलेट, प्लीज प्रिपेयर अ लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट क्यों भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक चीज हम भूल जाते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में। हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ इज टेकिंग केयर 24/7। आई एम 100% श्योर जितना वाइफ को पता होगा उतना हस्बैंड को नहीं पता होगा नहीं स्पेशल पता चाइल्ड हूँ। के बारे में। करेक्ट। ठीक है, एंड टेक अ सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, वाइफ को कुछ हो जाता है, सारा बर्डन हस्बैंड पे आ गया, हस्बैंड इज नॉट अवेयर अबाउट सो मच। अब उसको वर्क लाइफ बैलेंस करना है, ही कांट लीव द जॉब, तो उसका करेक्ट। डिपेंडेंसी जो है प्रोफेशनल्स पे आ जाएगा। ही नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे और क्या करना है। तो लेटर ऑफ इंटेंट वहां भी हेल्पफुल हो जाता है, जस्ट टू रीड। और जब हस्बैंड वाइफ मिलके लेटर ऑफ इंटेंट बनाते हैं, दे गेट सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, और आप सोचो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उनको ये डॉक्यूमेंट दे दिया जाए, आई थिंक anyone who's taking care of special needs child after the parents lifetime, it will be make things easier for them to understand and to take care of the child. It'll be crystal clear for them, right? यस, Yeah. क्रिस्टल क्लियर। बिकॉज लेटर ऑफ इंटेंट में आप सब कुछ लिखते हो, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, कैसे आप ब्रिंगिंग है, क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, कौन सी मेडिकेशन वर्क किया, कौन सा नहीं किया, आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि ये नहीं करना आप। ओके, और उसको क्या चीजें पसंद हैं, तो सब कुछ आप लिख देते हो उसके अंदर। करेक्ट। सर, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे क्या? पास फ्रॉम यूट्यूब। सो सुबलक्ष्मी मैम पूछ रहे हैं
कि can the sibling who is in abroad be a legal guardian? यस आई थिंक सो ही कैन सिबलिंग बन सकता है, क्योंकि लीगल लॉस के अंदर पेरेंट्स के पास सिबलिंग को ही राइट दिया जाता है लीगल गार्डियनशिप हम्म। बनने का। एंड वी हैव केसेस वेयर जहाँ पे सिबलिंग अब्रॉड है एंड दे आर एबल टू गेट लीगल गार्डियनशिप फॉर देयर सिबलिंग हु इज इन इंडिया। So I think they can, get it. They will have to be physically present here when they are seeking the legal guardianship. But we have cases जहाँ पे sibling को दिया है। राइट, राइट। एक और क्वेश्चन है सुबलक्ष्मी मैम से, इज इट इनफ पेरेंट्स मेंशन द लीगल गार्जियन इन द विल? नहीं, it's not enough because bill के अंदर parents will mention it, but whoever is the legal guardian, they will have to get that legal guardianship certificate. Okay, आप हर राइट, जगह बिल की कॉपी नहीं दे पाओगे। ओके, राइट। लीगल गार्डियनशिप लीगली डॉक्यूमेंट है जो ऑथराइज करता है आपको फॉर टेकिंग डिसीजन। विल के अंदर आप अपनी विश लिख रहे हो कि आई हम्म। वांट दिस पर्सन टू बी द लीगल गार्डियन। ओके, राइट, now that person whoever is the legal guardian will take the copy of the will and go to the national trust and get the legal guardianship certificate. राइट। आई गेस आपने जो एस्टेट प्लानिंग के बारे में बताया, बीइंग विल, ट्रस्ट, एलओआई, इन सब का जो प्रोसीजर है, इसको भी पेरेंट्स को सीरियसली लेकर के बहुत अर्ली स्टार्ट करना चाहिए, आई बिलीव। राइट। Yes, I am in a favor कि this legal framework should be created as early as हम्म। possible. Okay, हम लोग सोचते हैं कि चाइल्ड इस एज का हो जाए उसके बाद सोचेंगे उसके बाद करेंगे, बट आई थिंक looking at the life uncertainties, you know राइट, as early as you create this legal framework, you have a peace of mind. विल तो राइट, वैसे भी लाइफ में विल तो बहुत पहले लिखी जानी चाहिए। ओके, राइट। क्योंकि आपने जैसे एसेट्स बना लिया है तो वो आप डिस्ट्रीब्यूशन आपके अकॉर्डिंग तभी होगा जब विल है। वरना एक हम्म। प्रॉपर्टी भी है, उसको भी आप चाहते हो कि स्पेशल चाइल्ड को चली जाए और आप चाहते हो कि किस तरीके से मैनेज हो, वो आप विल के थ्रू ही कर सकते हो। तो विल तो डॉक्यूमेंट किसी भी एज पे लिखा जाना चाहिए। ओके, द हम्म। मोमेंट। बट आई थिंक जो भी लीगल फ्रेमवर्क बना रहे हो यू शुड बी रेडी विद दिस लीगल फ्रेमवर्क। और हम्म। कोई एज फैक्टर नहीं है कि ट्रस्ट जो है रिटायरमेंट पे ही बनना है या ट्रस्ट चाइल्ड के 22 साल की एज पे ही बनेगा। आई थिंक द मोमेंट यू कम टू नो कि ये प्लानिंग का हिस्सा है, यू शुड क्रिएट राइट। दिस लीगल फ्रेमवर्क। I guess parents got to know a lot, and from this discussion, and we would also provide. We would also provide Jitendra sir the contact details to the parents who want to ask more questions to sir. And I guess one more important point that struck out to me was understanding the evolving needs of your child. एंड जैसे कि आपने बताया था कि इवॉल्विंग नीड्स जो हैं वो दोनों चीजों में फिट होती हैं, फाइनेंशियल में भी एंड लीगल में भी। जब आप कैलकुलेट करते हो फाइनेंसेस अपने, तो अपने इवॉल्विंग नीड्स को समझना उसमें भी जरूरी है, एंड लीगल के टाइम पे जब लेटर ऑफ इंटेंट बन रहा है, आई बिलीव इट इज मेड मल्टीपल टाइम्स, राइट, बिकॉज नीड्स कीप इवॉल्विंग। यस, यस, सी या, जितने भी मैंने बात की है, चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग हो चाहे वो लीगल या, फ्रेमवर्क हो, ये कोई वन टाइम डॉक्यूमेंट नहीं है कि आपने बना के छोड़ दिया और एग्जैक्टली। लाइफ टाइम के लिए हो गया। ये या, रिव्यू करने पड़ेंगे आपको ऑन अ पीरियोडिक बेसिस एंड मेक राइट। दम चेंज। लेटर ऑफ इंटेंट तो आपको बहुत जल्दी रिव्यू करना पड़ता है। ओके, मे बी शायद विल आपको एवरी 5 इयर्स रिव्यू करना पड़े। ट्रस्ट में आप फ्रेमवर्क बनाते हो कि आज कोई फ्रेमवर्क है, वो शायद कल को आप सोचो कि चीजें चेंज हो गई है, मैं कुछ चेंजेस कर लूँ, तो वहां चेंजेस कर सकते हो ट्रस्ट के अंदर। हालांकि कम चेंजेस होते हैं क्योंकि आपने जब एक बार प्राइवेट ट्रस्ट बना दिया। बट इसके हाँ। अलावा कुछ भी है, चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है, चाहे वो विल है, चाहे वो लेटर ऑफ इंटेंट है, दीज आर ऑल डॉक्यूमेंट्स नीड्स, आई एम सेइंग नीड्स टू बी रिव्यूड पीरियोडिकली। ओके, वन टाइम डॉक्यूमेंट नहीं है कि बना के छोड़ दिया और बस हो गया, क्योंकि चेंजेस बहुत होंगे लाइफ में, सर्कमस्टांसेस चेंजेस होंगे, आपके एसेट्स बेस चेंज होगा। उन चेंजेस को अकोमोडेट करने के लिए आपको जो है ये डॉक्यूमेंट या तो रिवाइज करने पड़ेंगे या इसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। So there is one more question from Soumya. She's asking who can be legal guardians if there are no siblings? Like siblings के बाद किनका ये आता है according to the law? ओके, सी अकॉर्डिंग टू द लॉ तो जनरली ब्लड रिलेटिव्स आते हैं।
ओके, पहला लॉ के अंदर यही देखा जाता है कि ब्लड रिलेटिव्स कौन नियर अवेलेबल है, ओके, उसी को हाँ। लीगल गार्डियनशिप दिया जाए। अब कहने को पेरेंट्स फ्रेंड सर्कल में से भी अपॉइंट कर सकते हैं, राइट, बट आई थिंक कर सकते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन। मिलेगी नहीं मिलेगी, दैट इज लेफ्ट टू द कोर्ट टू डिसाइड। ओके, वो असेसमेंट के बाद दे विल डिसाइड। इफ दे सी कि कोई और अवेलेबल नहीं है इंडिया में, ओके, एंड पेरेंट्स हैव ओनली दिस ऑप्शन, तो उसको मिल सकता है। अब नेशनल ट्रस्ट के अंदर एनजीओ को भी दिया हुआ है प्रोविजन की एनजीओ कैन टेक अ लीगल गार्डियनशिप, राइट। वो एनजीओ नेशनल ट्रस्ट के साथ रजिस्टर होनी चाहिए, बट आई थिंक वो अभी टेक ऑफ नहीं किया है। आई डोंट सी एनजीओ आर टेकिंग लीगल गार्डियनशिप बिकॉज बहुत सारी लीगलिटीज इन्वॉल्व हैं। अब एक बच्चे के लिए अगर एनजीओ आएगा तो ऑब्वियसली अदर पेरेंट्स विल वांट कि हमारे भी बच्चे की लीगल गार्डियनशिप ले लो। तो एनजीओ के लिए इतना बड़ा लीगल गार्डियनशिप लेना ह्यूमंगस टास्क, तो इसलिए वो भी टेक ऑफ नहीं किया है, वरना प्रोविजन तो सारे अवेलेबल हैं, ओके, बट आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन इतनी आसानी से होता नहीं है, राइट। तो कोई भी पेरेंट्स अगर ये सोच रहा है कि लीगल गार्डियन मतलब फैमिली मेंबर के बियॉन्ड हम नहीं बना सकते, आप बना सकते हो। ऑब्वियसली लीगलिटीज इन्वॉल्व है वहाँ पे, लीगल अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि उसको देना है नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। कोई गर्ल चाइल्ड है, आप गर्ल चाइल्ड के केस में किसी मेल को नहीं बना सकते लीगल गार्डियन अकेले, ओके, वहाँ पे फीमेल का होना बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस तरह की लीगलिटीज इन्वॉल्व है, आपको देखना होगा कि क्या ऑप्शंस हैं। आई थिंक वहाँ पे जरूरी है कि किसी भी लीगल प्रोफेशनल की हेल्प ली जाए एंड देन यू कंसीडर, बट आई थिंक एज अ पेरेंट यू कैन मेक इट अगर कोई अवेलेबल नहीं है आपके पास। आई गेस इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल सेशन, थैंक यू सो मच सर। आपने जिस तरह से ब्रेक डाउन किया हर एक चीज को, कि स्टार्टिंग से लेकर के कि आपको किस तरह से प्लान करना है दो जनरेशन के लिए, पेरेंट्स उतने उस हद तक शायद सोच नहीं पाते, बिकॉज बच्चों के साथ हमारा इतना अफेक्शन जुड़ा होता है कि हम अपने बच्चे के लिए ही सोचते हैं एंड हम अपना भूल जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि दो जनरेशन के लिए प्लान करना। और उसके बाद आपने जिस तरह से बताया कि देयर आर 5 डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड देन कमिंग टू फाइनेंशियल एंड लीगल, दोनों फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करना एंड स्टेट प्लानिंग करना अकॉर्डिंगली, आई गेस पेरेंट्स के लिए बहुत इंसाइटफुल रहा होगा। वी हैव शेयर्ड योर डिटेल्स एज वेल विद द पेरेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर डिस्कसिंग दिस important टॉपिक विद अस सर। थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एंड आई स्टिल सी एक हेजिटेशन है अभी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। ओके, करेक्ट। मुझे लगता है वो हेजिटेशन दूर होना चाहिए। पेरेंट्स शुड कम फॉरवर्ड एंड जस्ट स्टार्ट देयर फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या होगा क्या नहीं होगा फाइनेंशियल प्लानिंग में, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो बात की बात है, बट आई थिंक दे शुड स्टार्ट डूइंग द फाइनेंशियल प्लानिंग। आप एक बार जब करोगे तो चीजें अपने आप क्लियर होती चली क्लियर जाती है। होती देखिए, जाएंगी, फाइनेंशियल राइट। प्लानिंग इसलिए किया जाता है कि चीजें क्लियर हो, ओके, डाउटफुल नहीं करेक्ट। होती। हम्म। और लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड, ओके, वन थिंग विच आई हैव एक्सपीरियंस, कि आपके पास दो जनरेशन की प्लानिंग है, तो कॉर्पस रिक्वायरमेंट हाई होने वाला है, ओके, वो नंबर्स हाई होंगे। सी, मैं हम्म। एक बच्चे की अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करता हूँ 25-30 साल के लिए। अब अगर हम्म। मैं स्पेशल चाइल्ड की प्लानिंग करूँ 50 साल के लिए, तो वो कॉर्पस हाई आने वाला है, ओके। करेक्ट। हम्म। That should not scare you from doing the financial planning, because you start, you build up strategies। और हम जैसे बोलते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए नहीं करेगी आप 100% वहां पहुंच जाओगे, ओके, यू हम्म। विल गो एंड मेक चेंजेस एंड विल ट्राई टू राइट। रीच, ओके। तो वो स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट से कि लेट्स स्टार्ट, ओके, और करते करते फिर हम लोग स्ट्रेटेजीज बिल्डअप करेंगे। I guess parents के mind में there is one more complication that if we talk about class in Indian scenario, sometimes parents also think that uh, I do not have enough maybe for starting financial planning as such. So वो thought भी I guess worrisome होता है and hold back करता है sometimes parents को from doing something about Yes, their finances. होता है क्योंकि फाइनेंशियल Right. प्लानिंग को लिंक करने लगते हैं कि मेरे पास कितना एसेट्स है। हाँ। फाइनेंस, जैसे मैंने कहा, फाइनेंशियल प्लानिंग कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसके लिए 50 लाख या एक बिल्कुल। करोड़ चाहिए आपको। एक प्रोसेस है, ओके। आप किसी भी काम को करते हो तो एक प्रोसेस में डालते हो ना, उसके हम्म। बाद वो काम का ये आपको जो है रिजल्ट मिलता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आप एक प्रोसेस बना रहे हो। प्रोसेस के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि इतना होना चाहिए मेरे पास।
आई थिंक आपके पास अगर 10,000 रुपये भी है तब भी फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर सकते हो। क्योंकि करेक्ट। आप, अब हम घर के लिए, बहुत सिंपल सी चीज है कि हम घर के लिए बजटिंग करते हैं। अगर गवर्नमेंट का देखो, आप बजट इतने निकालती है हर साल, ओके, तो गवर्नमेंट प्लानिंग करती है ना कौन सा एक्सपेंडिचर कहाँ करना है, क्या खर्चे राइट। होंगे क्या नहीं होंगे। तो जब गवर्नमेंट इतने बड़े लेवल पे कर रही है तो हम अपने फाइनेंसिस के लिए क्यों नहीं करते हैं? हम भी तो वही राइट। प्लानिंग कर रहे हैं कि कहाँ खर्चा करना है, क्या सेविंग होगी, इस सेविंग को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, और ये गोल राइट। मेरा कैसे अचीव होगा। और ये प्रोसेस है, कोई प्रोडक्ट नहीं है कि दे दिया आपको किसी ने और हो गया। प्रोसेस है, एक बार आपने प्रोसेस में बना लिया, फिर तो आप उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते चले जाते हो। एक और क्वेश्चन है सर, इफ यू डोंट माइंड, देयर इज अ हाँ यार। क्वेश्चन asking, can a long term residential care system take legal guardianship? So people might think that abhi, what after me, if my child हम्म, goes to an assisted living space, will matlab, through the law system, is it allowed for them to take legal guardianship? तो ये डिपेंड करता है वो असिस्टेड लिविंग का फ्रेमवर्क क्या है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है। अब नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट पे आओ जाओ तो क्लियरली लिखा हुआ है कि एनजीओ कैन टेक द लीगल गार्डियनशिप प्रोवाइडेड दे आर रजिस्टर्ड विद नेशनल ट्रस्ट। तो अगर वो Right. एनजीओ के स्ट्रक्चर में है, ओके, तो दे कैन गो एंड रजिस्टर विद द नेशनल ट्रस्ट एंड टेक द लीगल गार्डियनशिप। Hmm. जी, इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। प्रोविजन लिखा हुआ है, नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट पे मिलेगा, एनजीओ को दिया हुआ है प्रोविजन, ओके। Hmm. और असिस्टेड लिविंग को डिसाइड करना है कि whether they want to take the legal guardianship of all the children or few children. But again, for that they will have to seek the permission of national trust, and it falls down to the national trust, they will allow or not. Right. I guess for any further questions, we have provided Jiten sir ki contact details, and parents can reach out to him directly. Thank you so much, sir, for doing this for the parents. And I guess it has been, amazing for parents who are also watching us from the International Purple Fest to, listen to you and understand most of the details of how to go forward with this. Thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक यू, इट हैज बीन वंडरफुल इंटरेक्शन। एंड जस्ट टू इन्फॉर्म, तो ये जो बुक मेरे पीछे दिख रहा है, ओके, Yes. दिस इज, so ये बुक है which describes everything in detail. It has gone for republishing, okay, so in Right. a month's time this, the new book will be coming out, okay, and then parents, any parents who wants to understand कि प्लानिंग में होता क्या है, ओके, कैसे करते हैं, तो दे कैन बाय दिस बुक एंड रीड एंड अंडरस्टैंड। तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा वो मिल जाएगा उनको, Right. तो डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि अब हाँ ये चीजें मुझे करनी है। The book is available on Amazon also. दिस बुक इज Yeah, अवेलेबल ऑन अमेजोन, हो सकता है अभी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, ओके, yeah, बिकॉज द पब्लिशर हैज चेंज, सो इट्स गॉन फॉर रीपब्लिशिंग नाउ, तो मे बी जनवरी एंड और फेब्रुअरी दिस विल बी आउट। right. Thank you so much, sir. I guess थैंक we यू, can थैंक यू, close. थैंक यू।